میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر شہر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اس پر کریں گے بات آج کے اس بلیٹن میں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سونیا شیخ اور میں ہوں عروبہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قائد اعظم مسلم لیگ نون نواز شریف کا کہنا ہے مجھ سے انتقام لیتے لیتے پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا گیا۔ پاکستان کی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں $5 ارب کی پیشکش تھی لیکن ہم نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ عمران خان کے دور میں ہر چیز مہنگی تھی، میرے دور میں عوام مطمئن اور خوش تھے۔ بہادر بیٹی کی طرح مریم نواز نے باپ کا ساتھ دیا۔ مزید کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے آج مریم میرے ساتھ بیٹھی ہیں تو مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ۔ میرے بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے پبلکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ پارٹی ماشاءاللہ اس معترف ہے اس بات کی۔ مشتری میں $5 بلین پیش کر دیا گیا ہمیں۔ ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ۔ پاکستان کی اپنی غیرت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو۔ مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا۔ یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں۔ میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے۔ میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی۔ پنڈی والی جیل ہے وہاں آ کے جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا، کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ ان کے نہیں پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں، مجھے بھی یہیں رکھ دو۔ پھر شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ آپ پلیٹی کے ہیں۔ جب انہوں نے جان دی تو بالکل میرے ہاتھوں میں تھی۔ میں ان کے سرانے بیٹھا ہوا تھا جب وہ سسکیاں لے رہی تھیں اور میں ودن منٹس وہ پھر فوت ہو گئیں۔ اہم خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت عارف الوی نے کامران ٹیسوری کی بطور گورنر سندھ تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے یہ منظوری آئین کے آرٹیکل 101(1) کے تحت دی ہے۔ گورنر سندھ کا عہدہ عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد سے خالی تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کامران ٹیسوری کی بطور گورنر سندھ تعیناتی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے یہ منظوری آئین کے آرٹیکل 101(1) کے تحت دی۔ گورنر سندھ کا عہدہ عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد سے خالی ہوا تھا، جس کی اب منظوری باقاعدہ طور پر صدر مملکت کی جانب سے دی جا چکی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ملک پر چوروں نے قبضہ کر لیا ہے، قوم مہنگائی سے مر رہی ہے۔ عمران خان جتنی جلدی کال دیں گے اتنی جلدی حق میں فیصلہ ہوگا۔ وفاقی حکومت کینٹینرز لگا کر کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ اگر رانا ثناءاللہ نے لوگوں پر ڈرون حملہ کیا تو کسی چیز کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آئیے جانتے ہیں۔ قوم مر رہی ہے، قوم تباہ حال ہے، قوم کال کا انتظار کر رہی ہے، اور عمران خان جتنی جلدی کال دیں گے اتنا ہی قوم کا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور سیلاب کی صورتحال میں یہ 15 اور 20 دن جا کے امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان اس وقت مسائلستان بن گیا ہے۔ جب 27 کلومیٹر پر کنٹینر لگانے والوں سن لو کہ آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر اپنا جمہوری حق ماننے والوں پر اس رانا ثناءاللہ نے کوئی ڈرون حملے کیے تو پھر لوگوں کے ریاکشن کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا؟ اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا؟ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
बरह रास्त आपको ले चलेंगे। 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस जारी है। सदर मुमलिकत खिताब कर रहे हैं। हो जाती हैं और कोविड में आपने देखा फिर वो कंपलसरी हो गया। हमने उससे 6 महीने पहले गुफ्तगू की थी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले की थी कि जी तहारत सफाई निस्फ ईमान है, इसीलिए निस्फ ईमान है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस ये सब कुछ तहारत से। तो मैं समझता हूँ कि रूहानी तहारत और जिस्मानी तहारत, रूहानी तहारत के ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इसके बाद कर लूँगा। मैं ये समझता हूँ कि जो उसवा हसना के एतबार से बड़ी अहम चीज़ है वो गरीब की कदर करना, यतामा की कदर करना सिंबॉलिक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ पढ़ाने जा रहे थे तो एक बच्चा रोता हुआ नज़र आया। तो मैं पूछा क्या हो तुमको? उसने कहा जी बच्चों ने सब मेरे दोस्तों ने नमाज भी पढ़ने गए और साफ़ कपड़े पहने, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है तो मैं यहीं पर हूँ। तो हुजूर उसको पहले घर ले गए, नमाज खड़ी रही, घर ले गए, नहलवाया, कपड़े पहनवाए और फिर उसके बाद गए। तो ये है फिक्र। कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक गरीब की फिक्र नहीं करेगा। और जिन माशरों ने गरीब की फिक्र की है, पावर्टी एलिवेशन अगर चाइना में हुआ है तो उन्होंने जनाब कितनी बड़ी कौम बनकर उभरे। तो लिहाजा मेरे नबी का और इस्लाम का बुनियादी पैगाम यह है कि कमज़ोरों की फिक्र करो, गरीब की, यतामा की, कुरान की। सदर मुमलिकत का खिताब जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आका की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा की आमद मरहबा। कराची में भी जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले सुबह सवेरे शाह फैसल कॉलोनी से जुलूस बरामद हुआ। मरकजी जुलूस आज एम ए जिना रोड से निकाला जाएगा। कराची से रिपोर्ट देखिए फयाज यूनुस की। जिसके माथे शफात का सहरा रहा हो उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। मुल्क भर की तरह कराची में भी नबी आखिरी ज़मान सरवर कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शाह फैसल कॉलोनी के इलाके से पहला जुलूस सुबह सवेरे बरामद हुआ। बच्चों, बड़ों और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक थी। शुरका मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद करते रहे। शहर कायद में जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से छोटे बड़े सैकड़ों जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि सुन्नी तहरीक की जानिब से मरकजी जुलूस एम ए जिना रोड से निकाला जाएगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कैमरामैन अली इमरान के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़ कराची। उधर मुल्तान सनेत जनूबी पंजाब में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में मिलाद रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद व सलाम के नजराने भी पेश किए जा रहे हैं। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। कार दो आलम शाफ़े महशर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न करिया करिया गली गली मनाया जा रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जनूबी पंजाब में भी आशिकान रसूल काली कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार अकीदत के लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं, जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत निछावर किए जा रहे हैं। मुल्तान में मरकजी मिलाद रैली समेत मजमूई तौर पर 107 जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। बहावलपुर में रबीउल अव्वल के 73 जुलूस निकाले जाएंगे। लोधरा में 23 जुलूस और रैलियों का एहतिमाम किया जा रहा है। जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। सादिकाबाद, चिश्तियाँ, टिब्बा सुल्तानपुर, रोजान और शुजाबाद में भी आशिकान रसूल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। फजाए दरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो रही हैं। जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर शहर, करिया करिया, गली गली आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले गए। दुरूद सलाम और हदिया हाय अकीदत की सदाओं से फजा गूंज उठी। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। शहर शहर, करिया करिया, गली गली 12 रबीउल अव्वल के जुलूस। ननकाना साहब जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मस्जिद अक्सा से शुरू हुआ। जुलूस में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सिखों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। सिखों ने गुरुद्वारा जन्म स्थान के सामने जुलूस के शुरका पर गुलपाशी की।
हालिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहर और गिरदो नवाह में 100 से ज़ायद जुलूस बरामद हुए। फजा दरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी। उकाड़ा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस गौसिया चौक से बरामद हुआ। शहर की फजा जुलूस के शुरका के दरूद व सलाम से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद चौक से जुलूस बरामद हुआ, जो कि मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दरबार हजरत हाजी शेख अहमद वली रहमतुल्लाह अलैह पर इख्तिताम पजीर हुआ। राना चौक में आशिकान रसूल के लिए रोगनी नान, चने, हलवा और सब्ज़ चाय के साथ नाश्ते का एहतमाम किया गया। मंडी भावदीन में ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूस के शुरका के लिए सिंदड़ी याम से 150 मन खालिस दूध से मिल्क शेक तैयार किया गया। मुंतजिमीन का कहना था कि उन्होंने सिंदड़ी याम 6 माह कबल मिल्क शेक के लिए महफूज किया था। जफरवाल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 250 देगे अफगानी पुलाव का एहतमाम किया गया। आरेवाला में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। आशिकान मुस्तफ़ा की जानिब से रैलियां भी निकाली गईं। और मुल्क भर की तरह सरगोधा में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का दिन मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ असजद मुनीर से। असजद मुनीर बताएगा बाजारों में कैसी रौनक है। जो बिल्कुल रहमतों, बरकतों और सादतों का दिन जो है मजहबी अकीदत और एहतराम से साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह मसाजिद में नमाज फजर के बाद खसूसी तौर पर दुरूद सलाम की महफिलों का इनेकाद किया गया। उसके बाद जो है मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस जो है वो मरकजी जुलूस जो कि मस्जिद हामिद अली शाह के सामने से बरामद होगा, वहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर इस मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। यहाँ पर तैयारियों का सिलसिला जारी है। जुलूस के साथ जो मुकर्रीन हैं उनका ये कहना है कि आका दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर शुरका भी हैं, वो भी काफ़ी पुरजोश हैं। उनका भी यही कहना है कि आज का दिन जो है वो ईद का दिन है, हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आका दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, इसलिए वो इस दिन को भरपूर तरीके से और खुशी से मनाएंगे। जी ठीक है असजद मुनीर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैकबाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस जामे मस्जिद पीर बुखारी से निकाला गया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बरकत खोखर से। बरकत, बताइएगा कैसे मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए जुलूसों के हवाले से तो मरकजी जुलूस जो जामिया मस्जिद पीर बुखारी से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ ठट मस्जिद अख्ताम पजीर होगा। शहर के दीगर इलाकों से भी छोटे बड़े जो जुलूस बरामद होकर DC चौक पर पहुँचे, जहाँ पर मरकजी और कायदीन की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जा रही है। यहाँ पर दुरूद और सलाम की फ़िज़ाओं से इलाका गूंज उठा है। यहाँ पर छोटे बड़े सभी जो है जुलूसों में शुरू हुए, ज़ेब तन नए कपड़े पहने हुए यहाँ पर सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा के सदाएं बुलंद करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सभी लंगर और दीगर खास खाने पीने का एहतमाम भी किया गया। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार से वाक़े से निपटा जा सके। जी बरकत खोकर अपडेट करने का शुक्रिया। आरिफवाला का रुख करेंगे, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे सफदर सुखेरा इस वक्त रैली में मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। सफदर, बताइएगा क्या मनाजिर है रैली के? आज बिल्कुल नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम वलादत है वो आरिफ वाला में भी भरपूर तरीके से जो है वो मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिला में जलसे, जुलूस और रैलियों का सिलसिला भी जो है वो जारी है। मैं इस वक्त आरिफ वाला में एक बड़ी रैली में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि रैली में जो है वो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है वो इस रैली में शरीक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की जो सदाएँ हैं वो रैली में जो है वो बुलंद की जा रही हैं। यहाँ पर हर कोई जो है वो अपने अपने अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो बेपनाह मोहब्बत का जो है वो इजहार कर रहा है। रैली के जो रास्ते हैं इनको जो है वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो सजाया गया है। रंग के नवाही इलाके सलाव में पर्सन ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन ऑफ पंजाब सैयद तारिक महमूद हसन के एजाज में इशारा दिया गया, जिसमें सैयद तारिक महमूद हसन की जानिब से शुरका को ओवरसीज कमीशन ऑफ पंजाब बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कमीशन भरपूर काम कर रहा है। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
सलाओ की समाजी और कारोबारी शख्सियत राना साजिद सुहेल की जानब से वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन ऑफ पंजाब सैयद तारिक महमूद उल हसन के एजाज में इशाया दिया गया। इस मौके पर ओवरसीज कम्युनिटी से खिताब करते हुए सैयद तारिक महमूद उल हसन ने कमीशन के हवाले से ब्रीफिंग दी, इसके मकासद और काम करने के तरीकेकार पर गुफ्तगू की। उनका मजीद कहना था बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है और उनके मसाइल के हल के लिए ही ये कमीशन बनाया गया है। तकरीब के बाद वाइस चेयरपर्सन ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन ऑफ पंजाब सैयद तारिक महमूद उल हसन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कोशिश यही है कि बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करते हुए इन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाए। इसका खालिस्तान मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज पंजाब कमीशन है उसके फंक्शन के बारे में आगाही देना था कि हमारा ओवरसीज पंजाब कमीशन किस तरह से इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, अदल व इंसाफ में जो रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए हम क्या इक़दाम कर रहे हैं और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो ओवरसीज़ पंजाब कमीशन आपके लिए अपने ऑफिस में मुहैया कर रखी हैं। जैसे कि अगर नादरा कार्ड आपने बनाना है तो हमारे ऑफिस से, आपने फ़र्द जमाबंदी लेनी है तो माल मरकज़ का ऑफिस हमारे ऑफिस में मौजूद है। इस तरह से हमने जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उसका भी ऑफिस, उसका भी डेस्क वहाँ पे रखा हुआ ताकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ओवरसीज पंजाब कमीशन के ऑफिस से आप पूरी तरीके से रहनुमाई ले सकते हैं। पीटीआई बरतानिया साउथ ईस्ट के सदर मोहम्मद जाहिद राजा और लंदन पीटीआई के सदर वकास सागर समेत दीगर शुरका का कहना था कि ये कमीशन ओवरसीज के लिए नहायत खुश आइंदा है। बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए इस कमीशन में तमाम मसाइल को एक ही जगह हल करने की कोशिश की जाती है। आज सोहेल राना साहब जो ये इस्लाह के बिजनेसमैन हैं उन्होंने माशाल्लाह अपना हमारे जो ओवरसीज पंजाब के जो वाइस चेयरमैन हैं मखदूम साहब को उनको इस्लाह में वेलकम किया था और उनके एजाज़ में एक डिनर दिया था और यहाँ पर माशाल्लाह मखदूम साहब ने हमें ओवरसीज पंजाब कमीशन के बारे में अपडेट किया है और अब तक जो उन्होंने जो लोगों की मदद की है वो उसके बारे में बताया है। मखदूम साहब ने, तारिक साहब ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो बनी हुई है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बड़ा अच्छा पोर्टल है। कोई भी किसी किस्म के इनको मसले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी किस्म के, सिंपली आपने ऑनलाइन जाना है, पोर्टल पे अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें और वहाँ से विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था कि लोगों को ओपीएस के हवाले से ज़्यादा मालूमात हो कि ओवरसीज़ में जितने भी इधर मामलात हैं वो इधर रह के उनके सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये बहुत परेशानी होती है कि मामलात उधर होते हैं बंदा इधर होता है। तो आज हमने काफ़ी कोशिश की है कि इस उनके टूर में लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की हो जाए कि हम इधर रह के अपने मसाइल हल करा सकते हैं। आज का बेसिकली इवेंट जो है ना वो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मखदूम साहब, जनाब मखदूम तारिक महमूद उल हसन साहब, तो इनको जो है ना वाइस चेयरमैन जो है ना ओपीसी पंजाब का दोबारा से मुंतखब किया गया है। तो इनके ऑनर में आज हमने एक जो है ना वो एक गेट टुगेदर रखा है, सब दोस्तों को इकट्ठा किया है और हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है जी। तकरीब में सदर पीटीआई साउथ ईस्ट रीजन मोहम्मद जाहिद राजा, सदर पीटीआई लंदन वकास सागर, साबिक मेयर सलाह मोहम्मद नजीर, राना हारून जमील, चौधरी अरशद साहब, मोहम्मद असलम इंसारी, राजा जाहिद, फरजाना मुख्तियार, चौधरी जाबर फारूक, जहीर अहमद, राना जुबैर, बैरिस्टर मजहर मार्थ, काउंसलर फिजा मतलूब, काउंसलर मोहम्मद शरीफ और अफजल मुगल के अलावा इलाका भर से दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज, यूके। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मारूफ समाजी तंजीम अखुवत के ज़रिए एहतमाम चैरिटी डिनर हुआ, जिसमें तंजीम के रूह रवा डॉक्टर अमजद साकिब ने खुसूसी शिरकत की। मारूफ क्रिकेटर शुएब अख्तर और अदाकार नुमान एजाज के अलावा ओवरसीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन तारिक महमूद उल हसन शाह भी तकरीब का हिस्सा बने, जिनकी अपील पर शुरका ने दिल खोल कर एहतियात दी है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद मीर। पाकिस्तानी सलाह मुतासिन के तबाहशुदा घरों की तामीर नौ का अज़्म लिए समाजी तंजीम अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब की जानिब से ग्लासगो में चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। ओवरसीज कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन तारिक महमूद उल हसन शाह ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब की खास बात दो पाकिस्तानी स्टार्स लेजेंड क्रिकेटर शुएब अख्तर और मायानाज अदाकार नुमान एजाज की शिरकत थी, जिन्होंने न सिर्फ तकरीब की रौनक दुबाला की बल्कि पुरजोर अंदाज में ओवरसीज पाकिस्तानियों से भरपूर एहतियात की अपील की। अदाकार नुमान एजाज ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में अब भी
भी लाखों लोग सैलाब के पानी की वजह से खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बीमारियां फैल रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अखुवत जैसी नेक नाम समाजी तंजीमों की भरपूर मदद करें। शोएब अख्तर ने खिताब करते हुए कहा, डॉक्टर अमजद साकिब को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तानी कौम उन पर एतमाद करती है। अखुवत के जरिए सैलाबजदगान को कर्ज हंसना देकर उनकी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए फिर से अपने पाँव पर खड़ा किया जा सकता है। खिदमत की हो, मेरे जैसा फास्ट बॉलर बखियां तोड़ के वापस आता था घर पे, सुनने पाए बखियां तोड़ के वो सौरभ गंगुली को बेचारे को मार मार के बुरा हाल कर देता था। नौमान एजाज और शोएब अख्तर ने शुरका के सवालों के तहम्मुल से जवाबात भी दिए। हुकूमतों के होते हैं करने के, लेकिन आप उससे भी वाकिफ हैं बड़ी अच्छी तरह से कि हुकूमतें क्या कर रही हैं हमारे मुल्क में। उनको इतनी ही फुर्सत नहीं है कि वो उन मकामात पे जाके देखें, उन लोगों से जाके मिलें जो बगैर घर, बगैर छत, बगैर दीवारों के। सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ है। तकरीब की मेजबानी के फराइज हबीब मलिक ने अदा किए, जिन्होंने एहसन अंदाज में तकरीब को आगे बढ़ाया। इस मौके पर डॉक्टर अमजद साकिब ने अपने खिताब में अखवत की कारकर्दगी और सैलाबजदगान को अब तक दी जाने वाली माली इमदाद की तफसीलात से लोगों को आगाह किया। पाकिस्तानी स्टार्स की अपील पर चैरिटी डिनर के शुरका ने दिल खोल कर एहतियात दिए। चंद घंटों में 2,30,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए गए। एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपना घर बेचकर 25,000 पाउंड देने का ऐलान भी किया। PTI के ओहदेदारान ने 500 पाउंड फी टेबल के हिसाब से 20 टेबल्स खरीदे। चैरिटी डिनर में स्कॉटलैंड के अलावा इंग्लैंड से भी नामवर ओवरसीज पाकिस्तानी और PTI के ओहदेदारों ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब के आखिर में तमाम हाज़रीन की तवाज़ो और तकल्लुफ़ पेशाइये से की गई। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर माल चौधरी मोहम्मद अखलाक के एजाज़ पे बर्मिंघम के मकामी हॉल में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें मिडलैंड्स भर से पार्टी कारकुनों और कश्मीरी कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर माल ने कहा कि PTI हुकूमत ने ओवरसीज कश्मीरियों की पटवारी सिस्टम से जान छड़वाई है। वो अपनी ज़मीन के दस्तावेजात बरतानिया में बैठ कर हासिल कर सकते हैं। कश्मीर हुकूमत बारे अदम एतमाद की बातें अफवाहें हैं। बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम की समाजी शख्सियत चौधरी सगीर ने अपने दोस्त अहबाब के हमरा आजाद कश्मीर के वजीर माल के एजाज में एक इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की, जिसमें हल्का सनसना से ताल्लुक रखने वाले अहबाब को मदऊ किया गया। वजीर माल का कम्युनिटी रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और जुलूस की शक्ल में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रेजिमेंट पार्क हॉल में लाया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। चौधरी मोहम्मद सगीर, रऊफ मुगल, बैरिस्टर करामत हुसैन, चौधरी अमजद अली, चौधरी तनवीर और दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी के मसाइल में जमीन के तनाज़ात के इशू ज्यादा सामने आते हैं, जिनके हल के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को सख्त अगोदो करना पड़ती है। चौधरी इखलाक ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ही पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर है जो मुल्क को बहरानों से निकालेगा। इस वक्त नाअहल हुक्मरानों की वजह से मुल्क में काफी ज्यादा मसाइल हैं। प्रॉपर्टीज आज़ाद कश्मीर का तो उसका तो मैं खुद ही वारिस हूँ, तो इंशाअल्लाह वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं सिस्टम को, जो कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। 12 तहसीलों में काम शुरू है, वो तकरीबन कुछ हो गई हैं, तो बाकी का 12 के बाद फिर शुरू करेंगे। कश्मीर के हवाले से आप रिसेंटली देखें ना, हमारे रियासत के सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, अगले माह में यहाँ आ रहे हैं लंदन, यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब ने माजरत कर ली, मिनिस्टर साहब ने माजरत कर ली, तो छोटे मोटे वाक़यात तो हो जाते हैं, तो जब माजरत कर ली तो रिज़ाइन के क्या इशू है, रिज़ाइन क्यों करें, वो तो लोगों ने वोट देकर उसको वहाँ भेजा है। चौधरी इखलाक ने मजीद कहा कि कुछ नादान दोस्त झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि आजाद कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। हम इमरान खान की क़यादत में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास के साथ खड़े हैं। इस दौरान वजीर माल आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद इखलाक, रऊफ मुगल, बैरिस्टर करामत और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने महकमा माल का सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया है, अब पटवारियों की इजारादारी खत्म हो चुकी है, तमाम ओवरसीज कश्मीरी अपने घर बैठकर अपनी जमीन के कागजात ले सकते हैं। तो इखलाक साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करी रहे और इंशाल्लाह ओवरसीज थी इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह वापस जा सुनते
और ओवरसीज़ दी बड़ी कंप्लेन आई इंशाल्लाह सारियां हल होसन इंशाल्लाह तो असां उन्होंने दुआ गो अल्लाह ताला ने हर कदम पर अल्लाह ताला कामयाब करे। आज हमारे दरमियान जनाब चौधरी खलाक साहब जो पहली बार मिनिस्टर बन के यूके की धरती पे एक्चुअली बर्मिंघम में तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो बाखूबी जानते हैं और उनके ऊपर इनकी नज़र भी है और इंशाअल्लाह वो हल होंगे। बड़ी अच्छी बात है कि ये इतना खास इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसीलिए जो है बड़ी आज भी दिन में 3-4 इनके जलसे जुलूस थे और बाज़ाब्ता मिलना भी चाहते हैं कम्युनिटी के, सो इनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही है। समेत स्टे पे बैठे हुए पंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों को खुशामदीद और आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का कि आपने वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर माल आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद खलाक साहब को बर्मिंघम आमद पर खुशामदीद कहते हैं और बाकी तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पर शिरकत की। रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी खलाक साहब की उनकी वज़ीर हुकूमत का कलमदान संभालने के बाद आज बरतानिया के अंदर वो तशरीफ़ लाए और उनके चाहने वालों ने आज यहाँ बर्मिंघम में अंदर एक बहुत बड़ा जलसा आम किया है और आज़ाद कश्मीर के अंदर PTI की हुकूमत सही मानों में काम कर रही है और मेगा प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह ला रही है। शुरका का मजीद कहना था कि चौधरी खलाक जैसे ज़ीर सियासतदान को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर माल बनाने पर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के शुक्रगुजार हैं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक महीने के अंदर पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और जल्द ही तमाम मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली राजा शौकत अजीज भट्टी ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ से बात करते हुए मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाएंगे। मैं समझता हूँ माजी में जो अदालतों के ज़रिए एक सियासी कत्ल हुआ था वो अपने अख्ताम को पहुँचने को जा रहा है। लोगों की उम्मीदों के मुताबिक, तवक्कुआत के मुताबिक इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब एक महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान में होंगे। वक्त और हालात बता रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में अक्टूबर और नवंबर हमेशा बड़े आम रहे हैं और ये अक्टूबर और नवंबर मैं समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख़ में बहुत आम होंगे। लेकिन जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि शायद कोई और एक्सीडेंट हो जाए और हमारी लॉटरी निकल आए, अब कोई चांस ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों ने बहुत सारे नए तालिब इल्मों को आजमाया लेकिन वो तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे, बल्कि मैं यूँ समझें कि उन्होंने जिन दरख्तों के साए तले बैठे थे उनकी जड़ें काटने की कोशिश की और मैं अब उन्हें दोबारा उस मुल्क में चांस मिलने का कोई चांस नहीं। एक हफ्ते में डार साहब के पहुँचने के साथ डॉलर की प्राइस देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें, बिजली की कीमत में 7 रुपये यूनिट की कमी हुई। मिस हैंडल हो रहा था, रुपए को आज़ाद करके अरबों और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ पाकिस्तान का और मैं समझता हूँ ये फ़ायदा हमने उस मुल्क की मुखालिफ कुव्वतों को दिया, हमें उससे हमारी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट सीट पे बैठे हैं, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलेंगे। वक्त ज़रूर लगेगा, जितने हालात ख़राब हुए हैं ये रात दिन में ठीक नहीं हो सकते, इसके लिए वक्त ज़रूर चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ कदम उठना शुरू हो गया है। बरतानिया में ट्रेन मुलाजमीन का मामला अभी तक हल ना हो सका। महीनों से हड़ताल पर बरतानिया हुकूमत टस से मस ना हुई। आज मुलाजमीन की हड़ताल के बायस 5 में से 1 ट्रेन मुसाफिरों को मंजिल मकसूद पर पहुंचाती रही। ट्रेन बंद होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। महंगाई से परेशान ट्रेन मुलाजमीन कहते हैं मुलाजमत और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानिया में रेल हड़ताल का सिलसिला न रुक सका, न ही उनके मसाइल और मुतालबात हल हो सके। बरतानिया में इस माह रेल खिदमात को मुतासर करने वाली ये तीसरी हड़ताल थी जो अपने मुतालबात मनवाने के लिए बरतानिया में हड़ताल कर रही हैं। पूरे बरतानिया में आज सिर्फ 5 में से 1 ट्रेन सर्विस दिन के वक्त चलती रही क्योंकि रेल वर्कर्स अपने हड़ताल में हिस्सा ले रहे थे। मजीद कौमी हड़तालों का शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ, लेकिन 15 ट्रेन ऑपरेटिंग कंपनी और नेटवर्क रेल के 40,000 से ज्यादा रेल, मैरीटाइम और ट्रांसपोर्ट यूनियन के अरकान हड़ताल कर रहे हैं। बरतानिया भर में रेल हड़ताल उनकी मुलाजमतों, तनख्वाहों और शराइत पर जारी है। लोगों से हुकूमत की तरफ से ताकीद की जाती है कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो सफर करने से गुरेज करें। महकमा ट्रांसपोर्ट के एक तर्जुमान ने यूनियन के मालिकान पर जोर देते हुए कहा कि वो अपने साथियों के साथ काम करें, उनके खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा, हमारे रेलवे को जदीद बनाने की अशद जरूरत है, लेकिन तमाम हड़तालें उन लोगों को सजा देंगी जिनके साथ खड़े होने और मुसाफिरों को मजीद दूर करने का दावा करती हैं। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि हम मईशत के खिलाफ नहीं हैं और न ही हम मुल्क के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग इस मुल्क में कामयाब हों, ये हमारे मफाद में है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, यूके।
برطانیہ میں مارگیج کی شرح میں اضافے کے سبب قسط ادا نہ کرنے کی وجہ سے بے گھری کے خطرات میں اضافہ ہو گیا۔ بے گھری کی صورتحال سے 2-4 افراد کا مکان کا قبضہ دوبارہ حاصل نہ کرنے کی صورت میں خودکشی کے خدشات جنم لینے لگے۔ بیورو چیف کے غلام حسین اوان اس پر رپورٹ کریں گے۔ رواں سال فروری سے مارگیج کی شرح میں اضافے کی وجہ سے کم و بیش دگنی ہو چکی ہے۔ مکان کھو دینے کے خدشے اور اخراجات زندگی میں اضافے کی وجہ سے مارگیج لینے والوں کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ شہری نے بتایا کہ اکتوبر سے اس کی مارگیج کی شرح 5.74% ہو گئی اور اب اسے 652.29 پاؤنڈز اضافی ادا کرنا ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے پہلے کے مقابلے میں کم و بیش دگنی رقم ادا کرنا ہوگی۔ ورک اور پینشن ڈپارٹمنٹ سے 439.27 پاؤنڈز ملیں گے، جو بینیفٹ کی 397.71 پاؤنڈز کی رقم سے زیادہ ہیں، جس سے مارگیج کی ادائیگی کے لیے مدد نہیں ملے گی۔ شہری کا کہنا تھا کہ اگر اگلے سال تک کوئی جز وقتی ملازمت مل جاتی ہے تو پھر مارگیج ادا ہو سکے گی۔ مالیاتی مارکیٹ میں انتشار اور مارگیج کی شرح میں اضافہ گزشتہ ہفتہ چانسلر کو اسی کوارٹنگ کی جانب سے منی بجٹ پیش کیے جانے کے بعد ہوا، جبکہ بینک آف انگلینڈ نے شرح سود 6% تک کر دینے کا اشارہ دیا۔ ادھر حکومت اخراجات میں کمی کرنے پر غور کر رہی ہے، تاہم وزیر خزانہ اور ٹریجری منسٹر میں سے کسی نے بھی ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ افراط زر کی شرح میں اضافے کے بعد بینیفٹس میں بھی اضافہ کیا جائے گا یا نہیں۔ ولسن نے حکومت کے رد عمل کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بینیفٹس پر گزارا کرنے والوں کو اپنی ادائیگیوں میں مشکلات پیش آئیں گی اور دوسری طرف دولت مندوں کو فائدہ پہنچے گا۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں پاکستان کمیونٹی روس کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں روح پرور محفل میلاد کا اہتمام ہوا، جس میں سفارت خانہ پاکستان ماسکو کے کونسلر عامر پرویز سمیت کمیونٹی کے اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ رپورٹ کریں گے شاہد گھمن۔ پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ ماسکو میں پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز کی جانب سے سجائی گئی روح پرور محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد تصدق حسین، ملک طاہر، اشرف راجپوت اور صابر علی نے حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اس چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ شرکائے محفل خوبصورت نعتیہ کلام سن کر جھومتے رہے۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اس موقع پر پاکستان کمیونٹی روس کے صدر ملک شہباز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس نے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم ہر سال روس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح آئندہ بھی مناتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ رب العالمین کا، رب الہی کا خاص رحمت ہے اس دنیا پہ ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ اور آپ جیسا نہ آپ سے پہلے اس دنیا میں کوئی آیا اور نہ آپ جیسا کوئی جب تک یہ دنیا ہے کوئی آئے گا۔ محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کمیونٹی سینٹر کے رہنما ڈاکٹر زاہد علی خان نے کہا کہ آج کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس کے بعد دنیا میں تاریکی کے بادل چھٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر تھے جو نہ صرف آخری نبی تھے، بلکہ وہ پیغمبر تھے جنہوں نے دنیا کو انسانیت، محبت، شرافت اور امن کا پیغام دیا، اور انہوں نے آخری دم تک اس تحریک کو جاری رکھا۔ ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔
महफिल मिलाद में पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज, काउंसलर आमिर परवेज, यासिर मलिक, चौधरी जाहिद, डॉक्टर जाहिद अली खान और दीगर शख्सियात ने मिलकर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत केक काटा। हर साल की तरह इस साल भी मॉस्को में जश्न ईद मिलाद नबी बहुत जोश व खरोश के साथ मनाया गया और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से हर साल इसको बेहतर से बेहतर करते रहेंगे। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत जश्न ईद मुबारक। पाकिस्तान कम्युनिटी रशिया प्रेसिडेंट जनाब मलिक शहबाज साहब ने सब साथियों को यहाँ जमा किया और जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े एहतमाम से यहाँ पर नाथख्वानी की गई और केक काटा गया और ये हर साल मलिक साहब करवाते हैं और कम्युनिटी सारे मिल के भाई दुरूद सलाम करते हैं और अपना अकीदत का नजराना पेश करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में। आज 12 रबीउल अव्वल ईद मिलाद नबी का दिन जो कि मेरे ख्याल से सबसे रहमतों वाला दिन है, जिस दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और ये रब्बुल आलमीन का हम पे बहुत बड़ी एहसान है कि उन्होंने हमें उस उम्मत से पैदा किया जो कि हमारे नबी की उम्मत है और ये आखिरी नबी हैं। आखिर में हाफिज फारूक ने बाबरकत महफल में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और बेहतरी के लिए दुआ भी करवाई। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस।